Good afternoon, students. Hope you are doing fine and studies going on very well. So, in your class, I have already started in this week. I have already started your nutrition in animals chapter. So many of the students were absent. Some of the students couldn't attend the classes. So for them, uh, I have already covered nutrition in amoeba and nutrition in humans. Only the last topic of this chapter is left, nutrition in ruminants. Okay, but for your benefit, I am starting the video lecture from the first. So, nutrition in animals. What do you mean by nutrition? Nutrition is a process through which our body absorbs or intakes the nutrients, digestion होता है nutrients का, and the body gets energy and other metabolic और body functions उससे होते हैं हमारे nutrition से. So what are the different components of food? You studied in class 6. The different components of food are: carbohydrate is the energy source, protein bodybuilding source of food, and next what? Fats are the storehouse of energy for future use. Okay, and you have other as vitamins, minerals, water तो सभी फूड में होता है कम ज़्यादा. Okay, now there are some specific processes in every organism. So through these processes, every organism passes through these processes to complete the process of digestion. First, what? Food खाना पड़ेगा. First step is what? Ingestion. Ingestion means taking in of food. हम जो food खाते हैं, that process is what? Ingestion. Next we have digestion. जो food हमने खाया उससे हमें तुरंत एनर्जी या प्रोटीन या विटामिन नहीं मिलेगा, वो डाइजेशन होना पड़ेगा. इट विल पास टू डिफरेंट organs of the digestive system. Different organs will secrete different enzymes, different digestive juices, and with the help of different digestive juices, different components of the food will get digested. Okay, next we have absorption. अभी चलो डाइजेशन हमने कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेशन कर लिया. अभी जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हुआ है वो बॉडी को मिलना चाहिए. वो बॉडी को कैसे मिलेगा? थ्रू आवर ब्लड. हमारे इंटेस्टाइन में कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आई विल एक्सप्लेन, वहां पे कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स है, उसको हम विली बोलते हैं. तो जो डाइजेशन फूड है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के विली से होकर जब गुजरेगा, villi are rich in red blood cells, RBC or blood. So it will pass to the blood, and blood will take away the nutrients, and blood will transport the nutrients through different organs to different organs or through different parts of our body. Next what? Assimilation. Assimilation means हम जो absorption, जो food absorb कर रहा है वो हमारा बॉडी में कैसे, हमारा बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, हाउ आवर बॉडी इज यूटिलाइजिंग द एब्जॉर्ब फूड. अभी फूड का क्या काम है? टू गिव एनर्जी, देन टू रिपेयर डैमेज्ड बॉडी टिश्यूज. हमारे बॉडी का जो सेल्स है, जो डैमेज सेल्स है, उसको रिपेयर करेगा. नेक्स्ट यू हैव व्हाट? ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. Okay, so this whole process is the assimilation. Next, egestion means जो फूड रह गया डाइजेस्ट हुए बिना, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड है जो डाइजेशन नहीं हुआ है, the undigested food from the body, elimination of undigested food is called assimilation. अभी देखो, we are human beings, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है. अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले तो जो ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से बना हुआ है, एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया है, एमोइवा है, दे आर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. उनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है और उस एक ही सेल से ही दे
perform movement, they eat foods, okay, they perform various, वो reproduction भी करते हैं उस through a single cell only. बहुत गरीब है बेचारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है और उस एक ही सेल से ही वो लोग डिफरेंट फंक्शंस कैरी करते हैं. लेकिन वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वी हैव different cells, various types of cells, 200 different types of cells are present in the human body. 200 अलग अलग तरह के cells ही है हमारे बॉडी में. And total number of cells more than 100 trillion, million, billion, trillion. You cannot imagine. जो अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनका एक ही सेल है, वो एक सेल डैमेज हो गया तो मर गया वो. और हमारा 200-400 सेल भी डैमेज होने से हम नहीं मरेंगे, क्योंकि आवर बॉडी हैज कैपेसिटी टू जो सेल डैमेज हुआ है उन सेल्स को फिर से बनाने के लिए वी हैव दैट कैपेसिटी, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव. नाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अभी फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन एमोइबा. सो देयर इज ए पिक्चर ओवर देयर. I will zoom to it so that you can see it clearly. Okay, I think it's visible to everyone. See, this is an amoeba. It is a unicellular organism. इसका सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल से वो न्यूट्रिशन भी वो फूड भी खाता है, डाइजेशन भी वहीं पे होता है, ठीक है. तो फर्स्ट दिस इज एन एमोइबा. स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, एक न्यूक्लियस है. अभी जो हमारा सेल है ह्यूमन बॉडी में भी न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. तो न्यूक्लियस हमारा सेल में जितना भी एक्टिविटीज होता है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो सेल डिवीजन हो, चाहे वो ग्रोथ रिप्रोडक्शन हो, वो सभी न्यूक्लियस परफॉर्म करते हैं. न्यूक्लियस के डायरेक्शन के अंदर वो परफॉर्म होते हैं. नाउ यू सी दिस इज एमोइबा. अभी ये फूड कैसे खाएगा? इंजेशन. सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमोइबा एंड दिस इज द फूड पार्टिकल. जब फूड पार्टिकल, एमोइबा के फूड पार्टिकल क्या है? स्मॉल स्मॉल प्लांट सेल्स, और ये पानी में रहता है. एमोइबा लिव्स इन वाटर. जब ये स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल्स एमोइबा के सामने आएगा, एमोइबा उसको सेंस करेगा, हाँ भाई फूड आ रहा है, अभी हमको लेना चाहिए. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो ये जो फूड, ये जो एमोइबा है, ये देखो ऐसा उसका जो सेल है, जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या करेगा? फूड पार्टिकल के चारों ओर इट विल फॉर्म ए कैविटी, और इट विल एक घेरा बना लेगा ऐसा, देखो. और धीरे धीरे एंड स्लोली द फूड पार्टिकल विल एंटर इनटू द कैविटी और द फूड वेक्यूल. और ये फूड पार्टिकल जब एकदम अंदर चला जाएगा उसका, तो इट विल फॉर्म ए फूड वेक्यूल हियर इन द 1 2 3 4 स्टेप. यू सी नेक्स्ट स्टेप विल बी, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस सेल के अंदर, जो फूड पार्टिकल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स था, एमोइबा दैट विल एब्सॉर्ब दैट न्यूट्रिएंट्स और डाइजेस्ट कर लेगा. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन कर लेगा, और जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा, उसने फूड खाया था, फूड डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद उसका भी एसिमिलेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ. अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, इट विल बी रिजेक्टेड और इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी. ये बॉडी से ऐसे बाहर निकल देगा. तो इन दिस प्रोसेस ये न्यूट्रिशन इन एमोइबा ऐसे प्रोसेस इन दिस डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. So nutrition in humans is completely different from nutrition in amoeba. दोनों में कुछ भी मिल नहीं है, क्योंकि एमोइबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और we human beings we are we are multicellular organisms. Now we see nutrition in human. So this is a typical structure of human digestive system. सो फर्स्ट प्रोसेस सभी ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन ही रहेगा, सेकेंड प्रोसेस विल बी डाइजेशन, एंड थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन, फिफ्थ प्रोसेस विल बी fifth process will be your excretion. Okay,
ingestion. So first food is ingestion in humans. First क्या होगा, we will take food. We have 4 different types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. incisor से हम क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल है we उसको बाइट करते हैं. एंड जो प्रीमोलर्स प्रीमोलर्स है, प्रीमोलर्स से हम च्यू करते हैं. जो कैनाइन्स है, कैनाइन्स जो एकदम जो शार्प टीथ है उसको कैनाइन बोलते हैं. कैनाइन से हम क्या करते हैं, जो टफ फूड पार्टिकल्स है, सपोज आप चिकन खा रहे हो या कोई हार्ड सब्सटेंस खा रहे हो, उसको तोड़ने के लिए हम कैनाइन्स यूज करते हैं. और प्रीमोलर्स और मोलर्स से हम जो फूड पार्टिकल्स को चबाते हैं ताकि वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए. वी ग्रीन द फूड पार्टिकल्स. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अभी फूड खा लिया, चबा लिया. नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव ऑर्गन इज टंग. अभी देखो, टंग, इन आवर टंग वी हैव सेवरल टेस्ट बड्स. अभी व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट? स्वीट, सोर, सॉल्ट एंड what are the different taste? Sweet, salty, bitter and sour. तो अभी हमारे we in our tongue we have different regions, we have different taste buds where these tastes are sensed by our tongue. अभी देखो, sweet to taste sweet, salty, bitter and sour, सभी के लिए different there are some regions or buds. नेक्स्ट द टंग का भी क्या काम है? इट मिक्सेस द फूड इन द माउथ. किसके साथ मिक्स करेगा? इट मिक्सेस द फूड विद द saliva. So see, there are some glands over there. These glands are known as salivary glands. There are 3 glands. These are known as salivary glands. And salivary glands secrete saliva. And what is saliva? Saliva it is a watery substance secreted by the salivary glands, जो कि हमारे फूड पार्टिकल से मिक्स होगा एंड इट हेल्प्स अस टू स्वेलो द फूड. नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन. एंड द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इट स्टार्ट्स इन द माउथ वेयर फूड इज मिक्स्ड विद द सलाइवा. और सलाइवा क्या करता है? इट कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस. सलाइवा में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, हमारे फूड का जो कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल है उसको सुगर में ब्रेक डाउन करता है. सो इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सुगर. स्टार्च इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वो जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है एंड इट स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो स्टार्च से सुगर में कन्वर्ट होगा इन द माउथ. एंड सलीवा आल्सो मेक द फूड स्लाइमी. स्लाइमी मतलब एकदम आपका जो वो म्यूकसी वाटरी कर देता है ताकि एकदम से हमारे बॉडी में जा सके. फूड विल पास थ्रू द इसोफेगस एंड द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस विल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स. जब हम फूड स्वेलो करते हैं तब जो हमारा इसोफेगस है एक वेव की तरह काम करते हैं. देन दैट वेव लाइक कंट्रैक्शन हेल्प्स टू स्वेलो द फूड. ओके. Then these movements help the food down into large thick muscular organ called the stomach. First food खाया, it mixes with the saliva, then through esophagus it reaches the stomach. अभी stomach के जो lining है, internal lining, it has some glands and it secretes hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid एक एसिड है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एसिड जो हमारा फूड को हेल्प करने में मदद करता है. इट इज प्रेजेंट इन आवर स्टोमक ओनली. वो फूड से नहीं आता है, वो हमारे स्टमक में ही सेक्रेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेक्रेट करता है और म्यूकस भी सेक्रेट करते हैं. और ये सभी चीजें क्या करता है? It helps, the digestive juices helps in the breakdown of proteins into simpler form. हमारे बॉडी में जो फूड में जो प्रोटीन पार्टिकल है, डाइजेस्टिव जूस उसको ब्रेक करेगा इनटू सिंपलर फॉर्म. सिंपलर फॉर्म में प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है एमिनो एसिड्स. प्रोटीन से वो एमिनो एसिड बनेगा. नेक्स्ट जो एसिड है हमारे फूड में, अगर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल ऑल्सो
destroy it and provides an acidic medium for effective digestion. और हमारे digestion के लिए एक acidic medium जरूरत होते हैं हमारे stomach में, so hydrochloric acid will provide that. Next you see there are some other organs also or glands also: gallbladder, pancreas, liver. These are some other glands. Now we'll start one by one. From stomach the semi digested food called the chyme. So अभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. सेमी डाइजेस्टेड मतलब हाफ डाइजेस्टेड हुआ है, स्टमक में अभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. तो द सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, एंड फर्दर डाइजेशन will take place in the small intestine where secretions of liver and pancreas are released. अभी ये small intestine से connected है. देखो ये pancreas and there is another organ, this is your gallbladder. So ये भी कुछ juices और कुछ secretions करेंगे जो कि intestine में आके mix होगा. Now see the liver secretes bile. तो liver क्या secrete करेगा? liver से बाइल सेक्रेट होगा. बाइल भी एक डाइजेस्टिव जूस है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है. एंड बाइल जो इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. हमारे फूड में जो फैट पार्टिकल्स है, जो फैट कंपोनेंट्स है, बाइल विल डाइजेस्ट दैट फैट कंपोनेंट्स. बाइल इज स्टोर्ड इन ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो लीवर बाइल प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे और एक ऑर्गन है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर. लीवर से बाइल सेक्रेट होके गॉल ब्लैडर पर स्टोर रहेगा. फिर then from gallbladder it will move to the small intestine where the bile will digest or break down the fat component of the food. फैट को वो ब्रेक करेगा. नेक्स्ट the secretion of pancreatic juice. Similarly pancreas भी कुछ juice secrete करेगा या कुछ digestive juice secrete करेगा, liquid substance. So this helps in the breakdown of carbohydrate into sugars, proteins into amino acids and fats into fatty acids and glycerol. जो पेनक्रियास से जो जूस सेक्रेट होगा वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा इनटू सुगर्स. तो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल यूनिट है, जो सुगर और ग्लूकोज बनके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके ही कार्बोहाइड्रेट बनते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा into amino acid. It will break down the proteins into amino acid because amino acids together they form the proteins. Next, and fats into fatty acid. So fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol मतलब वो join करके together they form the fats. तो अभी now all the substances has been broken down into the individual. All the substances has been broken down into individual components in their basic building components. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो गया. कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल रहा है? सुगर मिल रहा है. ओके, देन प्रोटीन्स ब्रेक हो गया into amino acids. देन फैट्स ब्रेक हो गया into fatty acids and glycerol. डाइजेशन कंप्लीट. अभी जो डाइजेशन में जो प्रोडक्ट्स बने हैं अभी एब्जॉर्ब बॉडी को तो चाहिए होगा. बॉडी विल एब्जॉर्ब दैट नाउ थ्रू व्हाट? थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन. इन स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है वहां पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ऐसे फिंगर की तरह कुछ प्रोजेक्शंस है. वहां पे क्या होता है? वहां पे ब्लड सेल्स से भरपूर है. और जो डाइजेस्टेड पार्टिकल है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट विल पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू आवर ब्लड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. ओके, सो आफ्टर डाइजेशन वी हैव एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट एसिमिलेशन. एसिमिलेशन अभी जो हम लोग जो एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद अभी जो बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा. तो एसिमिलेशन मतलब हम जो फूड खाए हैं उसको अभी हमारे बॉडी को जो डिफरेंट फंक्शंस है लाइक ग्रोथ,
repair of damaged body parts, okay, providing energy to the body for various functions. That process will be called as assimilation. Now after assimilation, the last step will be egestion. Egestion means जो अनडाइजेस्टेड रह गया है डाइजेशन के प्रोसेस में, डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, that will be ejected out by our body, okay, and that process will be called as egestion. Okay, so we have completed digestion in human beings. So in our next class we will discuss digestion in ruminants. जो काऊ वगैरह है उसमें डाइजेशन कैसे होते, we will discuss that. Okay, thank you so much.